ধন্যবাদ 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 সবাইকে ধন্যবাদ। যে সমস্ত দর্শক মন্ডলী বা ফুটবলের প্রশংসক এই মাঠের কাছাকাছি চলে এসেছেন সবাইকে আমার অন্তরাত্মা থেকে ধন্যবাদ। সত্যি সত্যি আমাদের যে সমস্ত দর্শক এখানে রয়েছে সবার এখানে এই টুর্নামেন্টকে সহযোগিতা অবশ্যই ওনার পক্ষ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এই ব্লকবাস্টার টুর্নামেন্টের প্রথম চক্রের শেষ খেলায় আমরা পৌঁছালাম। এই শেষ খেলাতে অংশগ্রহণ হয়েছে জিত মঞ্জিত একাদশ অ্যান্ড নুন একাদশ ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই মাঠের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে এবং পূর্ব প্রান্তে রয়েছে প্রবীণ এফসি পটকা। আমি উভয় দলের অধিনায়ক বা সমস্ত খেলোয়াড় সাথীদেরকে শুভকামনা জানাই। এইবার আমাদের দর্শক কিন্তু খুবই এক্সাইটেড এই ম্যাচের প্রতি। আসলে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তো গত সিজনের গত সংস্করণের চ্যাম্পিয়ন টিম, সেই চ্যাম্পিয়ন টিম আবার এখানে এই টুর্নামেন্টের ইতিহাস এখানে আবার তৈরি করতে চায়। 2023-এর চ্যাম্পিয়ন দল এবার 2024-এর মধ্যে কিছু একটা কীর্তিমান স্থাপিত করতে পারে, সেটার জন্য আমাদের প্রত্যেকটা দর্শক এখানে এক্সাইটেড রয়েছে। আসুন সরাসরি সমস্ত এখানে যেভাবে খেলার পরিবেশন হচ্ছে অবশ্যই অদ্ভুত বা অস্মরণীয়। যে সমস্ত দর্শক এখানে রয়েছে আমাদের ফুটবলের প্রশংসক রয়েছে তারা অবশ্যই খেলোয়াড়দের পরিচয় চাইবে। আমি চাই আপনাদের পরিচয় করে দিতে। আসুন সর্বপ্রথম যে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন দল ওই দলের খেলোয়াড় সাথীদের পরিচয়। শঙ্কর জার্সি নাম্বার 1 গোলরক্ষকের ভূমিকায়, পেন জার্সি নাম্বার 66 বিদেশি মূলের খেলোয়াড় এখানে রয়েছে, পার্টিসিপেট করেছে টুর্নামেন্টের মধ্যে। সৌরভ জার্সি নাম্বার 22, মদন মান্ডি জার্সি নাম্বার 55, সুজয় জার্সি নাম্বার 99, বাসুদেব মান্ডি জার্সি নাম্বার 5, পাইনিক জার্সি নাম্বার 15, দুদাস জার্সি নাম্বার 10, ইয়ো জার্সি নাম্বার 9, তার সাথে রয়েছে সাগর জার্সি নাম্বার 12 এবং রাজা শেষ জার্সি নাম্বার 11। এই সমস্ত খেলোয়াড় রয়েছে জিত মঞ্জিত দলের মধ্যে। তারপর পটকা এফসি দলের খেলোয়াড় সাথীদের পরিচয় হবে। চৈতন জার্সি নম্বর 1 গোলরক্ষকের ভূমিকায়, তারপর রয়েছে ধানু জার্সি নম্বর 17, বীরজু জার্সি নম্বর 2, বেটা জার্সি নম্বর 16, সোনু জার্সি নম্বর 12, সুরজ জার্সি নম্বর 6, শিবা জার্সি নম্বর 9 দলের অধিনায়ক, শিবু জার্সি নম্বর 10, यशवंत जैसे नंबर 15, राजेश जैसे नंबर 11, अनिल जैसे नंबर 8। এই সমস্ত খেলোয়াড় দলকে সাপোর্ট করছে। এমনিতে খুবই চর্চিত জাহের আয়া অ্যাথলেটিক ক্লাব দুধিয়া শহর। প্রত্যেক সংস্করণের মধ্যে আপনারা বিদেশি মূলের খেলোয়াড় দেখবেন এবং দেখছেন। এখানে শিবু 10 নম্বর খেলোয়াড় খুবই কম সময়ের মধ্যে ডেভেলপ করেছে ফুটবলের জায়গা, একটা শ্রেষ্ঠতম খেলোয়াড়ের মধ্যে। ফুটবলের মহা অ্যাকশন এখানে শুরু হয়ে গেছে। সমস্ত দর্শকবৃন্দ শান্তি শৃঙ্খলায় এই খেলার আনন্দ উপভোগ করছে। প্রত্যেকটা দর্শক আমি স্যালুট করতে চাই। আপনাদের সহযোগিতায় এই টুর্নামেন্ট 4 চাঁদ লেগেছে। এখানে সুযোগ হতে পারে কয়েকটা সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়, স্টার খেলোয়াড় দলে পার্টিসিপেট করেছে।
66 নম্বর খেলোয়াড় পেন বিদেশি মূলের খেলোয়াড় জিত মঞ্জিত দলের মধ্যে হালকা করে পাস দিয়েছে বাঁ দিকে। এবার 99 নম্বর খেলোয়াড় ফ্রন্ট লাইনে পাস দিয়েছে লাভ বল। প্রত্যেকটা দর্শক কিন্তু এই শেষ খেলা প্রথম চোখে দেখার জন্য এক্সাইটেড রয়েছিল। আপনাদের চোখের সামনে খেলা করার জন্য সুন্দর জায়গায় বল গিলে ছড়েছিলেন, কিন্তু ফাউলের ইন্ডিকেশন পাওয়া গেছে। এই শেষ খেলাতে অংশগ্রহণ হয়েছে দুটো ভাইটাল দল। একদিকে রয়েছে জিত মঞ্জিত একাদশ ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আরেকদিকে রয়েছে দুটো স্টেটের মাঝখানে খেলা চলছে। উভয় দল এখানে স্টেটের মান বজায় রাখার জন্য চেষ্টায় থাকবে। এখানে আইনের কাছে বসেছে বলকে কাজী খেলোয়াড়ের জন্য লক করেছে, কিন্তু সঠিক জায়গা বলকে তুলতে পারলেন না। অবশ্যই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে যে বিদেশের খেলোয়াড় সাইড স্ট্রাইকার হিসেবে এই বলকে গোল জালে স্পর্শ করাবার জন্য এখানে চেষ্টায় রয়েছিল একটা সুন্দর সুযোগ, সেই সুযোগ হারানো হয়েছে। দ্বিতীয়ের প্রথম জন্য নাম করতে যায় এনআরসি রিভার, তার বিরুদ্ধে সিধু কানি একাদশ পুরুলিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল। উভয় দলের অধিনায়ক মহাশয় বা ম্যানেজার মহাশয় বা দলে জড়িত অধিকারী তাদের কাছে অনুরোধ আপনারা অবশ্যই আপনাদের কর্তব্য নির্বাহন করার জন্য চেষ্টায় থাকবেন। আসলে আপনার সব থেকে বড় কর্তব্য টাইমলি আপনাদের খেলোয়াড় সাথীদেরকে সঠিক জায়গায় পৌঁছানো। অনেক সুযোগ পাজানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন, ওনার তাক পাজানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে ওনার তাক পাজা যাব না, আর বল তো স্কোর हुआ যাতে মিক গোলতে লাগানো না। ওনা বাকরাতে পুরোপুরি চাষ বরাবরই কিছু না প্রত্যেকটি খেলোয়াড় নিয়ে জং লেখান খেলুন সহযোগ লেখান খেলুন। আইমা সবাই শোনা থেকে দাঁড়িয়ে প্রথমে কেনা নয় সেগুন অক্ত বাকরাতে ওনা সেগুন অক্ত আবু তালারে সেটের উত্তরে গেলে बड़े जो नोआ जहां खेलों को सगी है तो प्रथम राउंड में मुझे खेल नोआ खेलों रे बिना काकिना जीत मंजी हां दो डिबेटिंग चैंपियन कना की चलावेन संस्करण रे चलावेन सीजन रे चैंपियन टीम कना की चैलेंज रे बिना काकिना परवीन एफसी पॉट का झारखंड खेलोंडिया हुई कना अडियडली सहा कना डिटर्जेंट कंपनी उनके पढ़ना हो सिर्फ जामुन कना उपहार कना चाहे तो ना पाए खिलाड़ी तो सदरिया उन्हीं बंदा हो सिर्फ बना कना नवाला जहां खिलाड़ी हुए लेते हैं चंपागढ़ एफसी पुरुलिया पुलचांद माली बारिया के गोल लगाया और गोल तुलु के दल के जीत कर गया। अभी हम मैन ऑफ द मैच बखराते जो तुम छठिया रे कना और साथ साथ विनीत बाबू एफसी राजू मुर्मू जर्सी नंबर 16 नुकिन हो बार बोलते नुकिना दल लहागा के और अपने सिद्धू कानू एफसी मधु नुकिन तुलु गोल हुई लेता है नुको पेहड़ के मैन ऑफ द मैच बखराते सिर्फ को न्यामा आपे कोटे ने हो आपे को जहां दो फोर्थ रेफरी जोन और सेन करते आपे सिर्फ पे आवर जोन। मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा, इसके पहले जो मैच संपन्न की गई थी चंपागढ़ एफसी पुरुलिया वेस्ट बंगाल के पुलचांद माली जो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया, उसके बदौलत मैन ऑफ द मैच के लिए उनकी चयनित हो चुकी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस मैदान के ठीक दक्षिणी दिशा में जो हमारे मुख्य रेफरी ऑफिशियल है आप जरूर पहुंचे और आपका उपहार ले जाए। उसके साथ साथ विनीत बाबू एफसी के राजू मुर्मू जैसे नंबर 16 ये भी 2 गोल दागे थे अपने दल के लिए। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं, आप भी अपने दल के लिए
बहुत बड़ा कारनामा किया है। आप भी कृपया हमारे जो फोर्थ रेफरेंस ऑफिशियल है उन पे चले जाएं, आपका पुरस्कार, आपका उपहार ले जाएं। उसके साथ या फिर उसके अलावा शिव का एकादश के भी एक गोल दाकर दल को अगले चक्र पहुंचाया, दूसरे चक्र में पहुंचाया। आप भी उपहार के भागीदारी बन चुके हैं, आप कृपया जरूर पहुंचे। और आपका दोस्तों प्रथम चक्र का आखिरी मैच यहाँ पे शुरुआत हो चुका है। इस टूर्नामेंट को आज तक कोई रोका था ना रोकी है, इस टूर्नामेंट को कोई आज तक रोका था ना रोकी है। और प्रथम चक्र का आखिरी मैच यहाँ पे खेल की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों ये तो सिर्फ और सिर्फ झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। मैं आप सबों को बता दूं कई ऐसे वाइटल मैच इस मैदान में खेली जाएगी। कुछ अलग सा उत्सुकता चेहरे पे दिख रहा हमारे दर्शकों का, एक हल्की सी सुगबुगाहट देखी जा रही है, हल्का सा हलचल देखा जा रहा है। और ये वास्तविकता है जब जब खेल होता है फुटबॉल का। हालांकि हमारे पूरे विश्व स्तर में फुटबॉल का खेल सबसे लोकप्रिय माना जाता है। और यहाँ पे मौका बना, बहुत ही बड़ा फिजिकली चैलेंज, बहुत ही बड़ा फिजिकली चैलेंज। अगर NS33 के बाद ये शूट घड़ी करीब आती गई तब तक हमारे दर्शकों के दिलों की धड़कन बिल्कुल समुद्र के सैलाब की तरह उफाने मचाने लगी थी, वो भी शाहिद की तलाश में। मगर चिंता की आवश्यकता नहीं है, उस समय वो घड़ी आ चुकी है हम सबों के लिए। बहुत ही बेहतर अंदाज में खेल की यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे फिर से विदेशी मुल्क के खिलाड़ी 10 नंबर गेंद आगे बढ़ाई है। कोई भी शाही खिलाड़ी का सपोर्ट नहीं मिला, थोड़ा सा जरूर मायूस होगी, मगर हल्की सी लगता है तालमेल में गड़बड़ी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भाषा होता है। और भाषा का जो शेयर यहाँ पे शायद थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। विदेशी मुल्क के खिलाड़ी शायद ये जो 4 भाषाएं यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, शायद 4 भाषा नहीं जानते होंगे, समझते होंगे जरूर, मगर इशारे से कुछ ना कुछ वैसे करेंगे ताकि तालमेल बना रहे। तो थोड़ी सी कठिनाई जरूर होगी हमारे विदेशी मुल्क के खिलाड़ियों की, मगर हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं। अब देखा जाएगा कि अगले पड़ाव में कुछ ऐसे कारनामे होंगे, ऐसे कीर्तिमान होंगे जो फुटबॉल के इतिहास में किसी पन्नों पर लिखी जाएगी। और दल सामर्थ्य दिखाने के लिए तैयार है। मैं तमाम दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि इस टूर्नामेंट की गरिमा को बनाए रखें, और इस गरिमा को बनाए रखने के लिए हमारे तमाम दर्शकों की तरफ से सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी कड़ी में हमारे प्रशासन के कई अधिकारी दलबल के साथ पहुंच चुके हैं, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। बहुत अच्छा गेंद को आगे बढ़ा चुके हैं यहाँ पे लड़ से हलचल। पिछले साल के पिछले सीजन की जो चैंपियन टीम है, एक अलग सा सुगबुगाहट हमारे दर्शकों की। लगता है दिया और तूफान के बीच यहाँ पे मुकाबला हो रहा है, मगर कभी कभी दिया चलते रह जाते हैं मगर तूफान कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी नजारा कभी कभी टूर्नामेंट में देखा जाता है। बहुत ही मजबूत और अनुभवी टीम से पिछले गत वर्ष के चैंपियन टीम जीत मंजीत, और दूसरी तरफ पाट का परवीन FC पाट का अब कोशिश करेंगे कि विपक्षी दल को दे देंगे 440 का झटका, मगर और मौका नहीं दिख रहा है जिस मौके का बदौलत एक बड़ा सा झटका धीरे से दे। अगर मौका बनता है तो जरूर दागेंगे गोल, अगर मौका बनता है तो जरूर दागेंगे गोल, क्योंकि हर खिलाड़ी हर टीम जानते हैं जहां पे खेलते हैं वो है दुनियासो। इसे 99 नंबर के प्लेयर चलक करना चाहेंगे, लंबे कद के विदेशी के खिलाड़ी कुछ प्रयास करना चाह रहे थे। जगबाजों का डेरा लगा है इस टूर्नामेंट में।
कोई स्टार है तो कोई सुपर स्टार है, मगर यहाँ इस टूर्नामेंट के अंतिम पड़ाव में आपको पता चलेगा कि कौन है मेगा स्टार। ये 100% सत्यवाद है कि जो जीता वही सिकंदर बनता है, मगर हार के जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। बाजी कैसे बदली जाती है, नाच का सुन कैसे बदला जाता है, बड़ी में वो तजुर्बा है, तजुर्बे को यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहेगा। आइए इसके बाद वाली मैच के लिए फिर से एक बार मैं आना चाहूंगा, सचिन चाहूंगा, वो है NRFC और रिवर बैंक, मगर दूसरी तरफ चुनौती देने के लिए तैयार खड़े हैं सिद्धू कान्हो FC पुरुलिया। एक अलग सा स्किल देखा जा रहा है। कुशलता से भरा पड़ा हुआ हर एक खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ रोल अदा करना चाहेंगे। यहाँ भी एक बेहतरीन शॉट, राइट हैंडर शूटिंग, मगर टारगेट, एक अच्छा प्रयास, बेहतरीन प्रयास है के जरिए को दिशा दिया था। टारगेट पे रखना चाह रहे थे मगर सफल नहीं हुए, थोड़ा सा निराश और इसी to show the audience, invited guests and our every participant teams players also present here in this tournament. Really excited moment for everyone. Because we are watching the first round last match ongoing here between Parveen FC and Jit Manjeet Ekadash West Bengal. Match result 0-0 till now. Jit Manjeet, the defending champion, Neil and Parveen FC, Quad Kalsuni. Once again, he has a big opportunity for Jit Manjeet, since 11 number player. He have a big opportunity. Release the ball timely. A really excited moment for every presented audience. So audience, please get ready and take the sun for enjoy this fantastic first round last match. And I will want to highlight for the second round first match NRFC River Wave and Siddhu Kansuri. I kindly move to both them, so please welcome our fourth series of zone and Shivanu players now ground up doing this set. एक अलग सा अनुभूति हमारे दर्शकों को, एक अलग सा नजारा हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि इस मैच में भी कुछ विदेशी मुल्क के खिलाड़ी दाखिल हुए अपने दल को सपोर्ट करने के लिए। हर बार हर सीजन में हमारे दर्शकों को विदेशी मुल्क के खिलाड़ियों का खेल देखने का मौका मिलता है। तो लगभग एक वर्ष 365 दिन का इंतजार होता है हमारे इस क्षेत्र के दर्शकों का कि कब दुधिया शोल के नेतृत्व में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित हो और इस आयोजन में हम भी शामिल हुए। तो ये समझने अवसर हम सबों के लिए, और इस अवसर को हम जाने होने नहीं देंगे। इस मौका करते हुए दाहिनी तरफ आ चुका है, मौका मिल सकता है, मगर क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन ग्रेट कलेक्शन बाय गोलकीपर फॉर जीत मंजीत मिसेस शंकर। बहुत अच्छा यार स्किल, मगर 0 एंगल से गोल दागना बेहद मुश्किल होता है 10 के लिए, क्योंकि परवीन FC पॉइंट का जानते हैं विदेशी मुल्क के खिलाड़ियों में कैसा पावर रहता है। वो पावर जब बहुत अच्छी जगह पे यार यहाँ पे मौका बन सकता था, दिलों की धड़कन फिर से तेज हो गई थी। कमजोर दिल वाले ऐसे दृश्य को ना देखे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। बेहद गरीबी मामला यहाँ पे बनी थी सिद्ध मंजिल दल के लिए।
रोमांस बढ़ता हुआ पल पल और दर्शकों में हल्का सा हलचल। और गजब सा ऐसी यहाँ पे 10 नंबर के द्वारा फिर से एक बार 12 की बात आई थी और 12 ने कोशिश भी किया था मगर कोशिश नाकाम रही। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा जो गोलरक्षक है ये है चैतन सोरेन। उतना आसान नहीं होगा, बहुत बड़ा चुनौती है यहाँ पे जीत मंजिल के लिए। जमशेदपुर क्षेत्र के बहुत चर्चित गोलकीपर है चैतन सोरेन। फुटबॉल के इतिहास के पन्नों को जरूर पलट के देखिएगा, बड़ी आसानी से नजर आएगा उनका नाम, चैतन सोरेन का नाम। बेस्ट गोलकीपर ऑफ दिस टूर्नामेंट का खिताब कई जगह जीत चुके हैं। पीठाती में ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट संपन्न किया जाता है जहां पे पिछले सीजन में बेस्ट गोलकीपर ऑफ दिस टूर्नामेंट का खिताब देकर सम्मानित किया गया है चैतन सोरेन को। अगर यहाँ पे चैंपियन खिताब अपने नाम किया गया, चैंपियन का ताज अपने सर पे सजाया, इस बार भी वो मौका बना है। और फिर से एक बार इतिहास रचने का मौका बना है मगर इस बार आसानी से चबाया नहीं जाएगा मगर समझ लोहे का चना है। दो नंबर के खिलाड़ी बिरजू पात्र वाटिया क्षेत्र के बहुत ही होनहार और चर्चित खिलाड़ियों में से एक, दल के लिए स्तंभ माना जाता है। जियो टावर की तरह खड़े हो जाते हैं अपने दल के लिए और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं अपने साहसी खिलाड़ियों के लिए। ऊर्जा प्रदान करते हैं अपने साथी खिलाड़ियों के लिए। यह है बिरजू पात्र 2 नंबर के खिलाड़ी। मेगा प्रोग्राम होता है तब कुछ ना कुछ इतिहास रच जाते हैं और जब ये सभी स्टार खिलाड़ी मैदान पे आते हैं तो दर्शकों में हलचल मच जाते हैं। और इसी कड़ी में आमंत्रित है आप जो इसके पहले आप दोनों दलों ने एक दल को शिकस्त दे चुके हैं। यहाँ पे फिर से एक बार मौका मगर इस मौके को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। करीबी मामला फिर से एक बार बनी थी मगर जो बीत गई शो बात गई एक अलग कहानी थी। क्या पावर है, पावर जनरेट करते हुए 15 नंबर के खिलाड़ी। दो खिलाड़ी के साथ यहाँ पे चुनौती बना रहा अगले पड़ाव पे। और किसी ने दिल दिया तो किसी ने प्यार दिया भाई, किसी ने दिल दिया तो किसी ने प्यार दिया मगर अगली पड़ाव पे हम सभी इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ होगा रिवर बैंक तो दूसरी तरफ सीधू कानू पुरुलिया। खतरनाक शूटिंग का 10 का दम। हालांकि एक अलग है लोग, एक दर्शक यहाँ फिदा होते हुए मगर पूरी तरीके से फिदा तब होंगे जब स्कोर होगी। मगर प्रशंसा करना होगा, तारीफ करना होगा परवीन एफसी पॉट का जिस अंदाज में हर मोर्चे को संभाला है। दोस्तों फुटबॉल के जंगबाजों का डेरा लगा इस दुधिया सोल में और हर एक खिलाड़ी
तैयार है अपना सर्वश्रेष्ठ रोल में, मगर जीत और हार तय होती है गोल में। और आप सभी बने रहे इस दियासोल में। इस बार 7 नंबर के खिलाड़ी आ गया। मैच जो होगा अगला मैच के लिए फिर से एक बार आमंत्रित करूंगा। आई विल वांट टू इनवाइटेड फॉर सेकंड मैच, सेकंड राउंड फर्स्ट मैच। NRFC River Lake and Sidukano FC Purulia. I inform again for next match NRFC River Lake and Sidukano FC Purulia. गजब का नजारा, और फिर से करीबी मामला बना सकते हैं, हो सकता है हमला, और यहाँ पे बन रहा था करीबी मामला, मगर ये खतरा टल चुका है। বিপদ সরাবার যে কাজ সে বিপদ সরানো হয়ে গেছে। এবার 9 নম্বর খেলবার শিবা সর্দার जरूर होंगे असरदार अपने टीम के लिए। ऐतिहासिक मैदान में मारंगुरु इंदौर स्टेडियम दुधियाशोल में एक तरफ प्रवीण एफसी पॉट का और दूसरी तरफ चित्त मंजीत एकादश वेस्ट बंगाल। अभी तक गोल का अकाल पड़ा है इस मैच में। हम सभी जानते हैं 1980 में एक बार अकाल पड़ा था झारखंड, बंगाल और उड़ीसा।